Dear student, today I will be discuss two main content of the chapter An Empire Across Three Continents. First, major sources of Roman history, and second, social and family life background related features in the Roman society. The major sources of Roman history can be broadly divided into three groups. First, texts, second, documents, and third, material remains. Texts, letters, speeches, sermons, laws, histories of the period written by contemporaries are included in it. Documents, inscription and papyrus are included in it. Inscriptions were generally cut on stone, which is why they have survived even till today. A large number of inscriptions have survived in both Greek and Latin. Inscriptions are written materials on hard surface like stone or metals. Thousands of contracts, letters, accounts and official documents have survived on papyrus, which was a reed like plant and whose leaves were used for writing. These type of writing known as manuscripts. Material remains. A number of items are included in material remains. They are mainly discovered by archaeologists. These include monuments, buildings, other kind of structures, coins, pottery, entire landscapes. Each of these remains give us a specific information about the Roman past. किसी भी देश के इतिहास को जानने के लिए स्रोत ऑथेंटिक तथ्य के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें प्रामाणिक माना जाता है। रोम के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पाठ्य सामग्री, दूसरा दस्तावेज और तीसरा भौतिक अवशेष। पाठ्य सामग्री, इसमें समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि शामिल हैं। समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए इतिहास को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है, क्योंकि यह प्रतिवर्ष लिखा जाता था और ये पाठ्य सामग्री रोम के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दस्तावेजों में मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेख, पैपायरस तथा पत्तों आदि पर लिखी हुई पांडुलिपियां शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभिलेख और पांडुलिपि इतिहास के दो प्रारंभिक प्रामाणिक तथ्य के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अभिलेख कठोर सतहों पर लिखे हुए संदर्भ होते हैं जो मुख्य रूप से पत्थरों और धातुओं पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, जबकि पांडुलिपियां मुख्य रूप से पत्तों पर लिखी जाती हैं। उत्कीर्ण अभिलेख प्रायः पत्थर की शिलाओं में
रोम में खोदे जाते थे और यही कारण है कि वे नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी संख्या में यूनानी तथा लातीनी भाषाओं में पाए गए हैं, जो वर्तमान समय में रोम के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं। इन्हें पुरातत्वविदों ने खुदाई तथा क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा खोजा है। इनमें इमारतें, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान तथा भूदृश्य सम्मिलित है। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें रोम के अतीत के बारे में एक विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से पाठ्य सामग्री, दस्तावेज और भौतिक अवशेष रोम के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम and male dominated families are main features of family life in the Roman society. Nuclear family system widely prevailed in the Roman society. Adult sons did not live with the families of their father. Adult brothers also did not share a common household. On the other hand, slaves were considered as a part of the family because this was the concern of family for Romans and as a conception of family for Romans. Till the 1st century BCE, the wife did not transfer her property to her husband. She retained the complete rights in the natal's family's property. During the duration of marriage, woman's dowry definitely went over to her husband. The woman, even after her marriage, remained a primary heir of her father. She even became the owner of property after her father's death. In this way, Roman women had enough legal rights in managing and owning property. Divorce was quite easy in those days. It required only a notion of intent to break the marriage either by husband or wife. Males used to marry in their late 20s or in early 30s. Women used to marry in the late teens or early 20s. That is why there was a gap between age of the both. Generally, arranged marriage were practiced in Roman society. Families were male dominated. Generally, women were dominated by their husbands. They used to beat their wives. Except these, there was a substantial legal control of fathers over their children, sometimes to a shocking degree. For example, they had legal power of disposing of their unwanted children. एकल परिवार, विवाह पद्धति और पुरुष प्रधान परिवार रोमन साम्राज्य की समाज में प्रमुख विशेषताओं के रूप में देखा जा सकता है। रोमन समाज में एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के
परिवार के साथ नहीं रहते थे। वयस्क भाई भी बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दासों को परिवार का अंग माना जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक विवाह का ऐसा स्वरूप होता था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास अवश्य चला जाता था। विवाह के बाद महिला अपने पिता की उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता की मृत्यु होने पर वह उसकी संपत्ति का स्वामी भी बन जाती थी। इस प्रकार रोमन समाज में रोम की महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था। इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल अपनी इच्छा की सूचना देना काफ़ी होता था। पुरुष प्रायः 28 से 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियां 16 से 23 वर्ष के आयु में विवाह करती थीं। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। रोमन समाज में परिवार पुरुष प्रधान था। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। प्रायः महिलाओं पर पति हावी होते थे। वे अपनी पत्नियों को बुरी तरह से मारपीट भी करते थे। इसके अतिरिक्त पिता का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। कभी कभी तो देश दहनाने वाली घटना भी सामने आती थी। उदाहरण के लिए अवांछित बच्चों के मामले में पिता को उन्हें जीवित रखने या मार डालने तक की कानूनी अधिकार प्राप्त थे। शिशु को मारने के लिए कभी कभी पिता कई तरह के तरीके इस्तेमाल करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि रोमन समाज में परिवार की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो एकल परिवार, विवाह का स्वरूप और पुरुष प्रधान परिवार।